You love me, Holy Spirit. آمین. یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج خوبصورت ہمیں موقع اور وقت دیا ہے جس میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم خداوند کے اس منصوبے کو، اس کام کو جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے، کرتا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. ہلیلویا. ہلیلویا. میں شکر گزار ہوں خداوند کے خادم اپنے سینئر پاسٹر اور روحانی باپ پاسٹر ظفر اقبال صاحب کا، جن کے ذریعے سے میں اس مقام پر آج پہنچا ہوں. اور ابھی خدا کے خادم بات کر رہے تھے کہ ایک بچے جو ہیں، اولاد جو ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی تابع داری کرے تو اسی میں سرفرازی ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. تب خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس ملک میں جس میں تو رہتا ہے خدا تجھے سرفراز کرے گا، تیری عمر کو دراز کرے گا. اور پھر کہا گیا اپنے ماں باپ کو شاد رکھ. اور جو بچے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں وہی بابرکت ہوتے ہیں. ہلیلویا. ہلیلویا. ان کے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ پودا ہے جس کے وسیلہ سے گاڈ از گریٹ گاسپل اسمبلیز پاکستان کے اندر اور خدا کے فضل سے دنیا کے اندر کام کر رہی ہے. اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آج یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان میں خدا کے کلام کی کچھ باتیں جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہیں، جو خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں، ہم ان سب سے واقف ہو سکیں. ہلیلویا. ہلیلویا. ہم شکر گزار ہیں اس خداوند کے خادم کے لیے اور اس گھرانے خاندان کے لیے جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے. اور یہی وہ خاندان ہے جس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ نجات پا رہے ہیں، بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں اور بدروحوں سے آزادی پا رہے ہیں اور گنہگار راست باز ہو رہے ہیں. آئیے اس پرستاروں کے گھرانے کے لیے زوردار تالی بجائیں گے. کیونکہ خدا کے جو پرستار ہیں انہیں ریوارڈ صرف خدا ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تمہیں آسمان پر بڑا اجر ملے گا. ہلیلویا. آسمان پر پرستاروں کے لیے بڑا اجر ہے. اس روئے زمین پر تو خدا کے لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ساری نکتہ چینی کرتے ہیں. پر یاد رکھیں آج ہمارے لیے دلیری ہے، آج ہمارے لیے اس بات کی خوشی ہے کہ جس کے ہم پرستار ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس کا نام یسوع مسیح ہے جو آسمان کو چھوڑ کر اس روئے زمین پر اس لیے آیا تاکہ ہم جو اس روئے زمین پر رہنے والے جن کو عام اور معمولی لوگ سمجھا جاتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں. اور 1997-98 سے ہمارے پاس خدا کے خادم جو ہے دور دراز گاؤں آلو میں وہاں پر آتے رہے ہیں، ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم سے روشناس کروایا. اور پھر میں نے 8 اپریل 1999 کو خدا یسوع کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد خدا کی خدمت کے لیے ان کی شاگردیت میں رہا. اور پھر اس کے بعد میں نے 2007 سے سیمنری کا آغاز کیا اور پھر میں نے 2015 تک وہاں پر یونیورسٹی میں پڑھا بھی ہوں اور میں نے ایز اے لیکچرر وہاں پر کام بھی کیا ہے. یہ خدا کا شکر ہے. اور پھر 2015 میں مجھے ایز اے پاسٹر ارینج کیا گیا اور پھر اس کے بعد آج تک خدا کی کلیسیا کا کام بڑھ رہا ہے. خدا کا شکر ہے بہت سارے خادمین ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے اور ان کی برکت کے ذریعے سے بہت سارے خادم اور گھرانے اور خاندان اور کلیسیا قائم ہو رہی ہیں. ہلیلویا. مقدس متی رسول کی واقعات لکھی گئی انجیل کھولیے اور اس کے 10ویں باب کو ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. بائبل مقدس کو کھولیے ذرا. خدا کا کلام
ہمیں کیا بیان کرتا ہے، ہم اس بات کو آج جانیں گے۔ مقدس متی 10ویں باب کی 24ویں آیت سے ہمارے لیے یوں لکھتے ہیں، کوئی بھی کلام میں سے پڑھ کر اس کی برکت حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، یہ انجیل جو ہے، جو ہم خدا کا پیغام دوسرے تک سناتے ہیں، پہنچاتے ہیں، وہ لوگ بابرکت لوگ ہوتے ہیں جن کے وسیلہ سے لوگ خدا کی یسوع کو قبول کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ! جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے، وہ آسمان پر ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ جی، مقدس متی 10ویں باب کی 24ویں آیت میں ہمارے لیے یوں لکھتے ہیں، پڑھیے۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ نوکر اپنے مالک سے، نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے، شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ ہے، اور نوکر کے لیے یہ ہے اپنے مالک کی مانند۔ اپنے مالک کی مانند۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، شاگرد کے لیے یہ کافی ہے، نوکر کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مالک کے اور اپنے استاد کے تابع رہ کر کام کرے۔ اسی میں سرفرازی ہے، اسی میں خوشی ہے، اسی میں شادمانی ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں خوشحالی ہے، اسی میں برکات ہے۔ اور یاد رکھے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جس طرح ایک غلام کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں۔ بہت سارے شاگرد ہوئے ہیں، بہت سارے انبیاء زادے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے استادوں سے برکت پائی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے علیشا کے تعلق سے، جس نے اپنے استاد سے کہا مجھے تیرے روح کا دگنا چاہیے، اور اس نے پایا کیسے؟ اس نے کہا تیری جان کی سوگند، میں تجھ سے دور نہیں ہو سکتا، میں تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے لکھتا رہا اور خدا کا کلام بیان کرتا اپنے استاد کے ہاتھ پاؤں دھوتا، خدمت کیا کرتا تھا اپنے استاد کی، اور اپنے استاد کی خدمت کرتے کرتے اور بھی بہت سارے ایلیا کے شاگرد تھے، وہ اس کی قدرت، اس کا مسا، اس کا زور اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ پلستہ نہیں گئے، لپٹے نہیں گئے۔ اور اس نے کہا اگر تو دونوں حصہ چاہتا ہے، اگر اپنے کو مجھ سے جدا ہوتا دیکھ لے تو تیرے لیے ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اس سے لپٹا رہا، اس سے جدا نہیں ہوا۔ اسی طرح ہمارے لیے، چرچ کے لیے، آج پاسبانوں کے لیے، آج شاگردوں کے لیے، آج کلیسیائی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے خداوند کا یہ پیغام ہے، اگر آپ بھی بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی سرفراز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی لوگوں کی نجات کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، روحوں کو جیتنے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، بیماروں کو شفا دینے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے وسیلے سے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو، آپ کی دعا آسمان پر سنی جائے، تو پہلے اپنے پاسبان کی فرمانبرداری کرنا سیکھیں، پہلے اپنے خادم کے تابع رہنا سیکھے۔ جو تابع داری کرے گا وہ سرفرازی پائے گا۔ ہاللیلویہ! بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ رومیوں کا خط پڑھیں، اس کا 10واں باب اور اس کی 15 سے 17 ہے، تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے نوٹ کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ساتھ ساتھ کچھ حوالہ جات نوٹ کرتے جائیے گا، تاکہ ان کو ہم پڑھیں گے نہیں، ویسے ہی بات چیت کریں گے، وہ آپ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ اس بات کی سمجھ آ سکے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے، چرچ ہوتے ہوئے، شاگرد ہوتے ہوئے، پاسٹر کے، کلیسیا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خداوند یسوع ہم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ اپنے قانونوں سے جو رکھتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں اس کی بادشاہی کے لیے، کیونکہ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ کس کی مانند ہو؟ استاد کی مانند۔ وہ استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ نوکر اپنے آقا سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے۔ اگر وہ تابع داری کرے، اگر وہ فرمانبردار ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے، اور خدا اسے سرفراز کرتا ہے۔ اس لیے زبور میں بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے استادوں سے زیادہ عقلمند ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے،
वो अपने रहनुमा के ताबे रहकर जब जिंदगी बसर करता है तो खुदा उसको सरफराज करता है। जी पढ़िए क्या लिखा है रोमियो 10वें बाब की 15 से 17 आयत के अंदर। और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें, चुनाचे लिखा है क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं, लेकिन सब ने उस खुशखबरी पर ईमान न धरा। चुनाचे यशायाह कहता है, ऐ खुदावन हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन हालेलुया। ईमान कैसे बढ़ेगा? जब हम सुनेंगे और जो कुछ खुदा का पैगाम सुनकर उस पर अमल करेगा उसके कदम बाबरकत हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो सुनने के बाद क्या करेगा? मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, सुनती है, पहचानती है और फिर मेरे पीछे आती है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो कभी फलदार हो ही नहीं सकता, कभी रह नहीं सकता। तो जिस पौधे को खुदा ने लगाया हो वो फलदार होता है। हालेलुया। आज ये इस खादम की हमारे बुजुर्ग बाप की मेहनत है जिसके जरिए से आज हम फलदार हो रहे हैं। आज हमारे बीच में से खुदा ने कलीसिया में से एक और अपना नामवर खादम पैदा किया है जिसके वसीला से आज के बाद, पहले भी वो खिदमत कर रहा है लेकिन आज के बाद खुदा उसे कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं क्योंकि जब तक वो भेजे ना जाए, जब तक उनको खुदा की खिदमत के लिए मुकर्रर न किया जाए, जब तक उन्हें इस मकसद के लिए चुना न जाए, वो कैसे काम कर सकते हैं? यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को चुना, उनको मसा किया, उनको मुकर्रर किया, उनको इख्तियार दिया और उनको कहा जाओ, जाकर हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की बुजुर्ग और हर किस्म की कमजोरी को दूर करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोड़ियों के कोड़ साफ करो। खुदा ने कहा बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करो। तुम्हारे कदम जहां तुम कदम रखोगे, खुदा कहता है वो खाक जो तुम्हारे पांव से लग जाए अगर तुम उसको झाड़ दोगे तो कयामत के दिन वो वहां पर गवाह बन जाएगी कि यीशु का पैरोकार यहाँ था, खुदा का शागिर्द यहाँ पर आया था, यीशु का परस्तार यहाँ पर आया था, खुदा का खादिम यहाँ पर आया था। पर इन लोगों ने खुदा की आवाज को ना सुना। उनका हाल सदोम अमोरा से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। सदोम और अमोरा के लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने खुदा की आवाज को, खुदा के कदमों को ना पहचाना? क्या हुआ? सदोम अमोरा अदमा और कदो इन चारों शहरों पर क्या हुई? आग गंधक बरसी और आज तक वो इस बात का अचंभा है, निशान है कि इन लोगों ने खुदा की आवाज को नहीं सुना। जो खुदा के खादम की आवाज नहीं सुनता, याद रखिए वो अपने लिए खुद मुश्किल पैदा करता है। इसलिए खुदा यीशु से कहा जो मसीह का जानकर तुम्हारी खिदमत करेगा, जो मसीह का जानकर तुम्हें कबूल करेगा, उस्ताद जानकर, शागिर्द जानकर, नबी जानकर, रसूल जानकर, जो कुछ तुम्हें मसीह का जानकर जैसे कबूल करेगा वो उसी कदर अजर पाएगा। हालेलुया। अगर कोई ठंडे पानी का एक प्याला पिलाएगा तो उसको भी अजर मिलेगा। ये किसके वसीला से? यीशु के परस्तार के वसीला से, उसके खादम के जरिए से ऐसा होगा। हालेलुया। कितने बाबरकत लोग हैं जो खुदा के खादमों को अपने घरों में बुलाते हैं, जो उनकी खिदमत करते हैं, जो उनके लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, जो उनके लिए ठंडे पानी से ज्यादा का एहतमाम करते हैं, जो उनकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। कितने बाबरकत खुशहाल और शादमान घराने होंगे। तसल्लियों के पहले खत के दूसरे बाब की 13वीं आयत को खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पर बयान करता है। आप इसको नोट करें। आप पहला तसल्लियों उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत पढ़ दें। पहला तसल्लियों का खत उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत को पढ़ दें ताकि हम सब इन बातों को जान सके, सीख सके। खुदावन हमारी जिंदगी के लिए क्या बातें हैं जो मैं बताना चाहता है, जाहिर करना चाहता है। जी स्वागत करिए। और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में
रूह कुदस की खुशी के साथ कबूल करके कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानद बने। हमारी और खुदावंद की मानद बने। आमीन। किसकी मानद बने? अपने पेशवा की मानद, अपने खादम की मानद, अपने पासवान की मानद, अपने चरवाहे की मानद, अपने उस बाप की मानद जिसने आपको निजात की राह बताई है, जिसने आपको हमेशा की जिंदगी की राह के लिए तैयार किया है, जिसने आपको इस समय जमीन पर बैठकर आसमानी बाप से मुलाकात करवाई है, जिसने आपको आसमान पर जाना सिखाया है घुटनों के बल होकर, ताकि आपकी दुआ खुदा के हुजूर पहुंचे और आपकी दुआ का जवाब आपको मिल सके। तुम उनकी पैरवी करो, उनकी मानद बनो। खुदा का कलाम क्या ध्यान करना चर्च, शागिर्द, नौकर, कलीसिया, किसके लिए, किसकी मानद बनो? अपने अपने खादम की मानद, अपने उस्ताद की मानद, अपने चरवाहे की मानद, अपने चौपान की मानद। इसलिए 5वें बाब, इसी खाब के 5वें बाब में जब हम पढ़ते हैं 12वीं और 13वीं आयत को, तो यहाँ पर हमें इस बात के लिए इनकरेज किया गया है, हमें इस बात के लिए तैयार किया गया है, हमें प्रिपेयर किया गया है कि हम जो खुदावंद की कलीसिया में हैं, हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से चर्च को अपने खादम के लिए कैसे वक़्फ़ करना है। जी क्या लिखा है? भाइयों, भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हम हैं तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते हैं, जो तुम्हें मेहनत करते हैं खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो उन्हें मानो और उनके कामों के हिसाब से, और उनके कामों के हिसाब से मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो, आपस में मेल मिलाप रखो। आमीन। खुदा का कलाम क्या बयान करता है? हम किन के ताबे हो? हाँ जी, किसके ताबे हो? अपने पेशवा। पेशवा किसे कहते हैं? जो हमारा पासबान है, जो हमारा लीडर है, जो हमारा राहबर है, जो हमारा रहनुमा है। हम क्या करें? उसकी पैरवी करें, ताबेदारी करें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसके कहे पर चले, क्योंकि खुदा क्या चाहता है? हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके, हम आसमान की बादशाही के वारिस हो सके, ताकि हम खुदावंद से उसकी बरकत को पा सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कोई शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से बड़ा होता है। हमें क्या करने की जरूरत है? अपने आका की, अपने मालिक की, अपने पासबान की, अपने राहबर की, अपने लीडर की हमें ताबेदारी करने की जरूरत है, क्योंकि इससे हम बरकत पाएंगे। अलीशा ने इसलिए दूसरों से ज्यादा मसा, दुगना मसा और अपने उस्ताद एलिया से डबल मौजज़ात करके दिखाए। हालेलुया। किसने किया? एक शागिर्द ने किया, एक नौकर ने किया, एक फरमाबरदार ने किया, एक ताबे फरमान शागिर्द ने किया, जिसके जरिए से उसको बरकत मिली और उसने खुदावंद से जो कुछ चाहा खुदा ने करके दिखाया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। यीशु उससे बड़ा है और यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या करता हूं? तुम्हें क्या करता हूं? इख्तियार देता हूं। कहां तक? जमीन की इंतहा तक तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। कहां तक होगे? जमीन की इंतहा तक। हमें खुदा ने अपने गवाह बनाया। कहां तक? पूरी दुनिया के लिए। सारी दुनिया में जाओ और जाकर इंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए उसको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। तो बड़े लोग लगते हैं। हालेलुया। खुदा से सरफराजी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके कलाम पर अमल करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कलाम अक़दस के अंदर अपने शागिर्दों की रहनुमाई करते हुए बातें बताई हैं और सिखाई है कि उन्हें खुदा की इंजील की मुनादी को करना है और उन्हें खुदा के काम को सर अंजाम देना है। और वो कलाम अक़दस के अंदर भी हमने जब थस्सलुनीकियों के खत को पढ़ा है, जब हम खुदा के पाक कलाम से इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं उसके 13वें बाब को, तो हमें इससे पता चलता है खुदा का कलाम बयान करता है वो खुदावंद को, उन्हें खुदावंद के सामने अपनी भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए जवाब देना है। वो अपनी भेड़ों के लिए जागते हैं, वो अपनी भेड़ों के लिए खुदावंद के हुजूर में जागते हैं और दुआएं करते हैं ताकि उनके वसीला से
लोग बचाए जाएं। आप आराम की नींद सोते हैं और आपके पासबान खुदा के हुजूर घुटनों के बल होते हैं और वो दुआ कर रहे होते हैं, खुदा से कलाम मांग रहे होते हैं, वो दुआ बंदगी करते हैं, वो रोजा रखते हैं, वो अपनी जान को दुख दे रहे होते हैं, वो आपके लिए दुख उठा रहे होते हैं। इसलिए अब्रानियों के खात के अंदर इस बात की तालीम दी गई, क्योंकि उन्हें किसको हिसाब देना है? अपने खुदा को हिसाब देना है। और जो कोई चर्च की बात की गई और कहा गया कि चर्च अगर आप लोग अपने खानों की फरमाबरदारी नहीं करोगे तो फिर आपका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि उन लोगों का अंजाम बुरा होगा जो सुनकर मुनादी पर ईमान नहीं लाते और ताबेदारी नहीं करते, फिर उनका अंजाम सदूम और अमोरा के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। इसको बात करते खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तालीम देती है। यशायाह की किताब का जब हम 50वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें वो इस बात का जिक्र करता है, खुदावंद मुझे शागिर्द की जुबान और शागिर्द कैसे कान अता कर, ताकि मैं ऐसे बात करूं जैसे मैं खुदावंद का शागिर्द हूं। और शागिर्द हमेशा अपने खुदा से रहनुमाई लेता रहता है, सुनता रहता है और फिर उसके मुताबिक वो बातें लोगों तक बयान करता रहता है। इसलिए ज़बूर 23 के अंदर कहा गया, वो अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी चरागाहों में ले जाता है और उन्हें राहत के चश्मों से पिलाता है। वो उनके लिए मेहनत करता है, अपनी भेड़ों के लिए, उनकी गलाबानी, उनकी पासबानी के लिए। तो एक खादिम होने के नाते, एक चर्च का पासबान होने के नाते एक खादिम की ये जिम्मेदारी है कि अपने चर्च के लिए जागे और दुआ करे। वो अपने चर्च के लिए, खुदावंद के लिए उसके हुजूर में खुदा के हुजूर झुके, फरियाद और मिन्नतें करें और वो खुदा की कलीसिया को तैयार करे, उनकी रहनुमाई करे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, तू मेरे बड़े चरा, तू मेरी कलीसिया की पासबानी कर। खुदा ने इस मकसद के लिए हमें रखा है ताकि हम उसकी भेड़ों को चराएं, उनकी गलाबानी करें, उनकी निगाहबानी करें। और चर्च का काम है, कलीसिया का काम है अपने पास्टर की फरमाबरदारी, ताबेदारी और वफादारी करे, ताकि खुदा उनसे खुश हो और उनको बरकत दे। हालेलुया। किसके जरिए से आप बाबरकत होंगे? अपने खादिम के जरिए से, अपने पास्टर के जरिए से, अपने रहबर के जरिए से, अपने आका, अपने मालिक उस खुदावंद के जरिए से जिसके जरिए से खुदा आपको बरकत दे रहा है, ताकि आप बाबरकत हो, जिसकी दुआओं के वसीला से आप बाबरकत हो रहे हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, उसी की दुआओं के वसीला से खुदा आपको हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करता है और आप रूहों को जीतने के लिए काम करते हो। अगर खुदा के खादिम के वसीला से बहुत सारे खुदाम और चर्चिस कायम हो रहे हैं तो हमारे वसीला से भी ये काम बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारे जरिए से भी जो हम ईमान लाए हैं यीशु मसीह को, हम में से जितनों ने कबूल किया है, कलाम में लिखा सबको ये हक मिला है कि वो क्या है? खुदा के फरजंद है। कोई ऐसा तो नहीं जिसके लिए कोई फर्क बात की गई है? किसी के लिए कोई फर्क बात तो नहीं की गई। कहा गया जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो ईमान लाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उन्हें ये राइट मिलता है, उनको हक मिलता है आसमान की बात से कि वो वारिस होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, फिर वो जो आसमान पर से लेना चाहे खोल ले, जो आसमान से बंद करना चाहे वो बंद कर सकते हैं। उन्हें इस जमीन पर खुदा ने इख्तियार देता है, खोल दो, बंद कर दो, जो मन में आता करो। इसलिए यिर्मयाह के सहीफे के अंदर ये बात बयान की गई और उसको इस बात के लिए तैयार किया गया। आखिरी वाला पढ़ेंगे, यिर्मयाह के सहीफे में पहले बाब में खुदा का कलाम हमारी ये रहनुमाई करता है। यिर्मयाह खुदावंद से सरफराजी पाया हुआ शख्स है। यिर्मयाह का मैंने क्या है? खुदावंद से सरफराजी पाया। ये खुदावंद से सरफराजी पाया हुआ है। खादिम का चुनाव, खुदा की खिदमत करने वाले का चुनाव खुदा के हुजूर से होता है। याद रखें, किसी शख्स के वसीला से नहीं होता है। अगर कोई शख्स उसे उठा खड़ा करे तो उसकी खिदमत कुछ वक्त की होती है, फिर उसके बाद वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन जिसकी कॉलिंग, जिसकी खिदमत, जिसकी बुलाहट खुदा की तरफ से हो, खुदा उसे कायम रखता है और उसकी खिदमत का फल नजर आता है कि उसके वसीला से आगे खादम और आगे खादम बनते चले जाते हैं। चर्चिस, कलीसियाएं कायम होती जाती हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया है, तुम फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया। और वो किसके वसीला से कायम रहता है? शागिर्दियत के वसीला से, उसके पैरोकारों के वसीला से। क्या लिखा है जी? यिर्मयाह के सहीफे में पहले बाब में 4 आयत से,
तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। उसने फरमाया इससे पेशतर के मैंने तुझे मैंने तुझे बातन में खलक किया। मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से भी पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया है। हालेलुया। अब जब आगे जाके पढ़ते खुदा ने कहा जो तेरे मन में आता तू जिसको चाहे ढा दे, जिसको चाहे कायम कर दे, जो तेरे मन में आए, क्योंकि तू खादम है, तू खुदा का परस्तार है, तू खुदा का मुंह है, जो तू कहेगा वो हो जाएगा। एलिया जो कहता होता, और मर्द खुदा मूसा जो कहता होता, अलीशा जो कहता होता, पतरस जो कहता होता, मेरा यीशु जो कहता वो होता, और उसके शागिर्द आज जो कहते हैं वो होता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जो उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं खुदा उन्हें सरफराज करता चला जाता है। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से तुझे दिन रात, ताकि जो कुछ इसी के अंदर से ही तुझे सरफराजी मिलनी है, इसी के अंदर से तेरी कामयाबी है, इसी के जरिए से तू बाबरकत है। तू कहां तक बाबरकत है? पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। ना के बने वाला चर्च के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए तू बाबरकत है, क्योंकि खुदा ने तुझे उठाया इसलिए है, खुदा ने तुझे कायम इसलिए किया है ताकि तेरे वसीला से बहुत सारे लोग यीशु के गवाह बन सके। हालेलुया। आइए हम खुदा के हुजूर इन बातों को रखें और अपने लिए कलाम मांगे, अपने लिए बरकत मांगे। जो कुछ मैंने सुना है, पढ़ा है, शैतान इसको छीन या चुरा न सके। जो कुछ मैंने सीखा है ये मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, ताकि मैं भी उसके खेत में काम करने वाला बनूं, मैं भी उसकी फसल की कटाई वाला मजदूर बनूं, मैं भी उसकी भेड़ों को चराने वाला बनूं, मैं भी उसकी भेड़ों की गदावाली करने वाला बनूं, मैं भी उसके बर्रे चराने वाला बनूं, मैं भी उसकी कलीसिया को खुदावंद के लिए तैयार करने वाला बनूं। कहिए खुदावंद से मांगिए, दुआ मांगिए, खुदा के कलाम की बरकत मांगिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने लिए जो कलाम आपने सुना है इस कलाम